Hello friends, here is Siraj and I'm from knowledgeid.com, and this is SEO training part 21, and in this tutorial I'll tell you about the point is email marketing strategies. In the past video, in the part 20, we talk about the video marketing and branding aspects, and in this video we talk about email marketing and their strategies. This is very simple way but little bit tricky to understand it. Let me show you. This is my community forum and this is my website. Okay, and yeah, and on that website we have a subscription form over there and a subscription form over there. There are two subscription forms you can see, and the first one, this is a MailChimp subscription form, and this is the Jetpack subscription form. What the difference is? This is a simple plugin, WordPress plugin, and this is a completely embedded code which I put it over there, over this section. So what is MailChimp and how it works? This is a completely detail. When you go to mailchimp.com, this is a MailChimp. This MailChimp is an email marketing company, provides interface to the users to broadcast emails, to get subscribers list, and to integrate the website, to send them welcome emails, and there are so many works. MailChimp can do anything related to email marketing, and this is a free tool for beginners, entrepreneurs. Now I need to change my language. ये एक फ्री टूल है बिगनर्स के लिए. तकरीबन आपको एक महीने में 12,000 के करीब ईमेल यहाँ से सेंड कर सकते हैं आप, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है. और उसके अलावा अगर आपने उससे ज़्यादा सेंड करनी है तो फिर आपको उनकी प्राइसिंग में जाना पड़ता है. प्राइसिंग भी इनकी बहुत ही लाइट है. तो ये देखें, जैसे कि मैं करता हूँ, let's suppose, okay, maybe they increase the limit. Okay, let me, I think, yeah, 2,000. If you, okay, you can transfer 2,000 subscribers, not the email. If you have 2,000 subscribers, so you can use MailChimp free of cost. Okay, but if you have the more than 2,000 subscribers, so you need to purchase that plan, growing business and marketing stuff. Okay, and okay, first you need to sign up on mailchimp.com. okay, you can see the MailChimp link below that video description box. Okay, simply click on that link and you will be on the MailChimp website, and okay, and then you need to sign up on MailChimp. Simply put your email. Okay, siraj@knowledgeid.com, but I already have an account with MailChimp, so let me log in. Okay, yeah, log in here. This is very simple. I already have an account. This is a demo account I created just for the tutorial purpose. So this is a very simple. Launch the campaigns, create the email templates, grab and get the subscribers list, and check it out, the campaign reports. And that is an automation session. That is ये एक upgrade level का automation setup है. इसमें होता ये है कि आप अपनी साइट के साथ इंटीग्रेट करते हैं MailChimp के API को. उसके बाद आपकी साइट से कोई चीज़ परचेज़ की जाती है या कोई जो भी पर्टिकुलर सर्विस ली जाती है, तो MailChimp आपके यहाँ से ईमेल सेंड करता है. वेलकम ईमेल होती है, तो उसके बाद शेड्यूल्स ईमेल्स होती हैं, या फर्दर है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पेड फीचर है. फ्री फीचर में आपको तकरीबन 12,000 ईमेल्स पर मंथ सेंड कर सकते हैं. और अगर आपके सब्सक्राइबर्स बिलो देन 2,000 है, अगर 2,000 इक्वल टू 2,000 और 2,000 से अबव है, तो आपको इसका प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा. मैंने जैसे कि आपको पीछे प्राइसिंग में जाके बताया था. आप किसी भी टाइम अपने इसको अपग्रेड कर सकते हैं. सिंपली आपने अकाउंट में जाना है. अकाउंट में जाकर आपने यहाँ से बिलिंग, monthly plans or credit,
वहाँ पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से बैक आएँ, अकाउंट में आए सीधा, यहाँ से आपने अकाउंट में आना है। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखेगी अपग्रेड अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने एक टिप भी दी हुई है, 2000 सब्सक्राइबर्स रिमेन अनटिल योर प्लान रिक्वायर्स। अगर आपके 2000 सब्सक्राइबर्स हैं तो ये ठीक है, लेकिन अगर आपके 2000 सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको अपने अकाउंट को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इसलिए वही बात मैंने जो आपको बताई है कि अगर बिलो देन 2000 है तो आपको ज़रूरत नहीं है। अगर इक्वल टू और अबव 2000 सब्सक्राइबर्स हैं आपके पास तो आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरीके से मेलचिम्प किस तरह वर्क करता है इसके ऊपर मैं एक बिल्कुल डिटेल ट्यूटोरियल बनाऊंगा विद इन दिस वीक। सो उसके बाद आपको इसके बारे में कंप्लीट पता पड़ जाएगा, क्योंकि मैं इस ट्यूटोरियल में इसके बारे में कंप्लीट नहीं बता सकता, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि ये बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चन होगा। और क्योंकि इसकी कैंपेन्स क्रिएट करनी पड़ती हैं, टेम्पलेट्स हैं, फिर लिस्ट है, लिस्ट के अंदर साइन अप फॉर्म्स हैं बिल्कुल इस तरह के। दिस वन, ये तो एक हॉरिजॉन्टल साइन अप फॉर्म है जो कि ये भी उसी लेवल का है, पर उसके ऊपर बिल्कुल डिटेल में पूरा ट्यूटोरियल बनाऊंगा, वो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद या फिर आप मेरी वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं, और आप उसके बारे में कैसे नोटिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। मेरी अगर आपने साइट को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको डेफिनेटली नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या मेरे यूट्यूब चैनल को जो आपने सब्सक्राइब किया हुआ है अगर तो। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग, लेट्स सपोज मैं आपको कुछ ओके हमारा टॉपिक था ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़। ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ क्या क्या होनी चाहिए। एक अच्छा ब्लॉगर जो होता है उसके लिए सबसे बड़ी बात यह होती है, अगर आपके साइट पर ट्रैफिक आ रही है तो आपने उसको कन्वर्जन्स में कन्वर्ट करना है, उसको यूटिलाइज़ करना है। उसका मतलब ये होता है अगर आपकी साइट पर डेली की 1000 या 500, 300, 200 जितनी भी साइट पर ट्रैफिक है उसमें से आपने कितने लोगों को अपना क्लाइंट बनाया है, कस्टमर बनाया है, यूज़र बनाया है। वो इस तरह होता है कि आपके साइट पर ये साइन अप फॉर्म्स होने चाहिए सब्सक्राइब के। जब भी कोई इसको साइन अप करेगा तो आपके पास उसकी ईमेल सब्सक्राइब हो जाएगी, और जब आप उसको फ्यूचर में ईमेल ब्रॉडकास्ट करेंगे तो उसको आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपने रिसेंटली पब्लिश की है, जो भी आपकी नोटिफिकेशंस हैं, उसको पहुंच जाएंगे बर वक्त। उसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये भी एक सब्सक्रिप्शन का साइन अप फॉर्म है। जो भी आप सब्सक्रिप्शन के साइन अप फॉर्म ले लें, तमाम का मकसद एक ही होता है, ईमेल को गेट करना और उसको आपकी लिस्ट में इनलिस्ट कर देना। और जब आपको इन्फॉर्मेशन या कोई चीज़ शेयर करना चाहें, ब्रॉडकास्ट करना चाहें, तो ऑटोमेटिकली तो नहीं होती, फ़िलहाल आपको मैनुअली टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ता है और मैनुअली उसको ब्रॉडकास्ट करना पड़ता है मेलचिम्प के अंदर। मैं मेलचिम्प की बात कर रहा हूँ फ़िलहाल, जिसका ये फॉर्म इसको आपको सामने नज़र आ रहा है। और नीचे आते हैं तो ये जेट पैक का है। जेट पैक का फ़ायदा ये है कि जब भी आपकी साइट पर कोई भी आर्टिकल पब्लिश होता है तो ये ऑटोमेटिकली जिन लोगों ने इस फॉर्म के थ्रू साइन अप किया होता है उनको ऑटोमेटिकली ईमेल्स डिस्पैच हो जाती हैं। और ये भी एक अच्छी बात है, उससे आपका टाइम सेविंग होती है, ना आपको टेम्पलेट बनाना पड़ता है ना, और वो एक बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट क्रिएटेड हुआ होता है जेट पैक वालों की तरफ से इन द कोडिंग। सो वो ऑलरेडी उसके अंदर आपके रिसेंट आर्टिकल्स को इम्पेंड कर उसको सेंड कर देता है तमाम सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने इस लिस्ट को सब्सक्राइब किया हो, यहाँ से ना कि यहाँ से। जेट पैक में आपके बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स चलते हैं, उसमें आपकी इतनी कोई ख़ास मर्ज़ी नहीं होती, लेकिन जो है ये मेलचिम्प के हैं, इसमें बिल्कुल कस्टमाइजेबल है, हर चीज़ कस्टमाइजेबल है जैसे आप चाहें। ईमेल मार्केटिंग एक्चुअली ये सर्च इंजन मार्केटिंग SEM का फैक्टर है, लेकिन मैं इसको SEO में पढ़ा रहा हूँ। उसकी रीज़न यही है कि ये SEO के अंदर कंसीडर तो नहीं किया जाता क्योंकि ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक को ग्रैब नहीं करता, लेकिन ये जो ट्रैफिक है उसको मेंटेन करने में, रिटर्निंग विजिटर्स को ग्रैब करने में मदद देता है। तो इसलिए मैंने इसका थोड़ा बहुत लाइट टच दे रहा हूँ SEO के अंदर, क्योंकि एक तो आपकी साइट पर ये मेलचिम्प की या किसी भी कंपनी लाइक अवीबर, मेलचिम्प हो गया, गेट रिस्पॉन्स हो गया, किसी भी आप ईमेल मार्केटिंग कंपनी के आपकी यहाँ पर साइन अप फॉर्म्स होने चाहिए और उनको आपको मैनेज करना आना चाहिए। मैं आपको मेलचिम्प के बारे में बताऊंगा, विद इन अ वीक में ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा मेलचिम्प के ऊपर कम्प्लीटली विद इन सेगमेंट्स पार्ट्स, तो आप उनको भी कम्प्लीटली चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उसके बाद ये दोनों
इसका ये जेट पैक का है। जेट पैक अगर आप वर्डप्रेस के प्लगइन के बारे में सर्च करेंगे, जेट पैक, उसके अंदर सब्सक्रिप्शन का एक प्लगइन होता है। जेट पैक के अंदर कई फीचर हैं, उनमें से एक फ़ीचर जो है वो सब्सक्रिप्शन का होता है। उसको अगर आप अनेबल करेंगे तो विजेट आपको एक मिल जाएगा जो कि जेट पैक बाय सब्सक्रिप्शंस बाय जेट पैक के नाम से होगा। आप उसको किसी भी जगह पर ग्रैब कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। मैंने इसको उस टाइम ये फूटर के अंदर पुट किया हुआ है और ये बहुत अच्छी, ये मेरे लिहाज से काफ़ी अच्छा है। इसमें टाइम सेविंग है ना, मुझे टेम्पलेट को क्रिएट करना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट के अंदर जो रिसेंट पोस्ट होती है उसको एम्बेड करके ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस तमाम यूज़र्स को सेंड कर देता है। तो ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा है। और बाकी ये चीज़ मेरे लिए कुछ ज़्यादा अच्छी है क्योंकि ये बिल्कुल कस्टमाइज़ है। इसमें मेरा टाइम सेविंग बहुत ज़्यादा है। टाइम सेविंग तो ज़्यादा इसलिए है कि टाइम सेविंग भी कह सकते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल लुक जो चीज़ मिलती है वो हमेशा कस्टमाइज चीज़ करके मिलती है। मेरी कंपनी का लोगो, उसके बाद उसकी हेडर फूटर, मैं जोन से लिंक लगाना चाहूँ उसमें लगा सकता हूँ और बिल्कुल कस्टमाइज है। बिल्कुल ऐसा ही जैसे आप एक पोस्ट राइट कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे आप मेलचिम्प के अंदर एक टेम्पलेट डिज़ाइन करते हैं अंडर दिस टेम्पलेट सेक्शन। ओके, और उसके बाद टेम्पलेट सेक्शन के अंदर टेम्पलेट डिज़ाइन करके फिर आप कैंपेन को लॉन्च करते हैं, कितने लोगों को सेंड करनी है, कैंपेन के अंदर से लिस्ट को चूज़ करते हैं, फिर उन सबको ऑटोमेटिकली सेंड कर देते हैं। ये बिल्कुल एक डिटेल प्रोसेस है, इसके बारे में डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा विद इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स। तो आज का ये जो था ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ का, इसको थोड़ा बहुत मैं और इलेबरेट करता चलूँ कि इसके अंदर कुछ स्टेप्स नोट करने हैं आपने, जो कि मैं यहाँ पर बयान करना चाहूँगा। आपने हमेशा जो ईमेल मार्केटिंग, ईमेल स्ट्रेटजीज़ जो होती हैं वो स्टैटिस्टिक्स जो कि देखी जाती हैं, जिनको आप बोलते हैं हरबे, तो वो आपने कुछ इस तरीके से करना है। हमेशा आपने ईमेल को ब्रॉडकास्ट करना है वर्किंग आवर्स के अंदर। वर्किंग आवर्स कह लें, बिजनेस आवर्स कह लें, ओके ठीक है। वर्किंग टाइम के अंदर ये होता है कि आपकी ईमेल जो है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकती है। अगर आप वर्किंग आवर्स के अंदर सेंड नहीं करेंगे तो ये पॉसिबल है कि कुछ लोग उसको पढ़ें, क्योंकि सम टाइम ये चीज़ भी होती है कि आपने सबसे ज़्यादा देखना है कि आपके सब्सक्राइबर्स कहाँ से रिलेटेड हैं। आपके पाकिस्तान से हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से हैं, इंडिया से हैं, यूनाइटेड किंगडम से हैं, कनाडा से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने पहले देखना है कि कौन से रीजन से आपके सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा हैं। जिस रीजन से सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उस रीजन को मद्देनज़र रखते हुए आपने उनके वर्किंग आवर्स चेक करने हैं, उनके टाइम जोन के अकॉर्डिंग। ओके, जैसे कि अभी मैं देखता हूँ यहाँ पर 12 बज के तकरीबन कोई 1 बज रहा है, यहाँ पर कोई दोपहर का 1 बज रहा है, आफ्टरनून। ओके, और इस वक्त अगर मैं अमेरिका में चेक करूँगा टाइम, तो मेरे हिसाब से वहाँ पर कोई रात के 3:30 बज रहे होंगे। तो अगर मेरे पास सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स के, तो फिर मैं रात को 3 बजे अपनी ईमेल ब्रॉडकास्ट करूँगा, ताकि रात को 3 बजे नहीं, फिर मैं देखूँगा कि अमेरिका जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसकी जो वर्किंग आवर्स हैं, जो कि सुबह का टाइम शुरू होता है वो 9 to 12 के दरमियान में, जो बिज़नेस आवर्स जो कि बिल्कुल एक परफेक्ट टाइम है। अब 9 to 3 भी कर सकते हैं, 9 AM to 3 PM, वो भी एक अच्छा टाइम है। उस अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। वो अगर पाकिस्तान के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, वो तकरीबन बनता है, वो टाइम शुरू होता है कोई 4 PM से लेके इवनिंग 4 PM टू तकरीबन कोई 9 PM बनता है। इसी के अकॉर्डिंग लगभग करीब करीब बनता है। तो मैं उस टाइम पर यहाँ से ईमेल ब्रॉडकास्ट करूँगा ताकि यूनाइटेड स्टेट्स के वर्किंग टाइम पीरियड के अंदर लोग उसको मैक्सिमम व्यू कर सकें, देख सकें। ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि शेड्यूलिंग है। आपने शेड्यूल का बहुत ख़ास ख्याल रखना है ईमेल मार्केटिंग के अंदर। दूसरी बात, आपकी जो ईमेल होनी चाहिए वो ब्रांडेड होनी चाहिए। ब्रांडेड कह लें या फिर ब्रांड रिकग्निशन कह लें, ब्रांड रिकग्निशन। ओके, ब्रांडेड से मतलब ये है कि जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता चलता हूँ। ओके, लेट मी सी फर्स्ट। ओके, मैं ईमेल खोल लेता हूँ knowledgeidea.ce@gmail.com, and on this email I received maybe few emails. Okay,
ओके ओके, नॉलेज आइडिया, आई डोंट नो यहाँ पर पॉसिबल भी है कि भी नहीं होंगी, लेकिन वो उससे मुझे एक अंदाज़ा मिल जाएगा। नॉलेज आइडिया, okay, let me put the filter over there. Okay, subject, not subject, from knowledge idea, या ये नहीं, ये तो दूसरी हैं। एक्चुअली मुझे यहाँ पर वो नज़र नहीं है आ रही। ये तो जेट पैक ईमेल है, ये जो आपको पूरा टेम्पलेट दिख रहा है इस टाइम, ये जेट पैक ईमेल है, जो कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से उस प्लगइन के थ्रू सेंड होती हैं। तो ये पूरी एक जेट पैक ईमेल का ये टेम्पलेट है, उसमें आपका ये टाइटल आ जाता है, ये ऑथर का नाम आ जाता है, बाकी थोड़ी बहुत एक्सेप्ट आ जाता है। एक्सेप्ट के बाद ये नीचे थोड़े बहुत टैग्स आ जाते हैं, टाइम ड्यूरेशन आ जाता है। और वो एक्चुअली मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, एक्सेप्ट के बाद जो रीड मोर का जो ये ऑप्शन आ जाता है। समटाइम्स आपका ये रीड मोर का ऑप्शन शो नहीं हो रहा होगा, समटाइम ये पूरी पोस्ट शो होना शुरू हो जाती है आपके पूरे जेट पैक के अंदर। उसकी रीज़न मैं आपको बता दूं, वो ये होती है कि आपने अपने वर्डप्रेस के अंदर फुल टेक्स्ट को जनरल सेटिंग के अंदर जाकर जनरल में जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे आपने फुल टेक्स्ट को शो किया होता है, आपने उसको वहाँ से समरी को चेक कर दें। समरी को जब आप चेक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर समरी शो करेगा, पूरा टेक्स्ट शो नहीं करेगा। ये बहुत इजी है, ये कितना लेकिन समटाइम्स ये काफ़ी टिपिकल इशू लगता है दूसरों के लिए, जो कि बिगनर्स होते हैं, वो समझते हैं शायद कोडिंग का कोई इशू है। ऐसा कोई इशू नहीं है। और जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था, एक्चुअली मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाह रहा था, तो मैं वहाँ पर चलता हूँ। मैं एक्चुअली आपको मेलचिम्प का टेम्पलेट दिखाना चाह रहा था, जो कि हम फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें ब्रांडिंग, जो कि ये जो हमारा टॉपिक है ब्रांडिंग, उसको हम किस तरीके से उसमें विजुलाइज करते हैं। मैं यहाँ पे अगर उसको कर लूँ नॉलेज आइडिया, ओके ओके, knowledge idea, yeah, okay, knowledge idea community forum, मेलचिम्प। एक्चुअली इस तरह लिखूँगा तो शायद आ जाए। ओके, न्यू पोस्ट, ये भी जेटपैक का ही है। और नॉलेज आईडी, एक्चुअली यहाँ पर काफ़ी ईमेल्स रिसीव होती हैं, तो मेरे लिए उनको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है सम टाइम। यह अभी ये ईमेल सेंडर लिस्ट, ये मेलचिम्प से ब्रॉडकास्ट की गई है। और ये आप देख सकते हैं पूरी एक ईमेल है, ठीक है, ये ईमेल। और इसका अपना पूरा एक टेम्पलेट है, उसमें ब्रांडिंग में आपका लोगो आ जाता है। उसके बाद लोगो की बैक साइड पर आपका कोई भी मैसेज लिखते हैं आप, उसके बाद ये आपकी पोस्ट का लिंक, टाइटल, उसके बाद रीड मोर, उसके बाद ये नीचे भी चीज़ ब्रांडिंग में आ जाती है कि आप कोई भी यहाँ पर ऑफ़र या प्रमोशनल लिंक लगा सकते हैं। उसके बाद आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, ये भी ब्रांडिंग का एक हिस्सा होने चाहिए। और उसके बाद आपका कॉपीराइट्स टेक्स्ट होना चाहिए यहाँ पर, ताकि एक प्रोफेशनलिटी यहाँ पे दिखे। फीडबैक का ऑप्शन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अगर किसी को आपकी ईमेल पसंद ना आए तो उसको वो सब्सक्राइब भी कर सके, ऐसी ऑप्शन भी आपको डालनी पड़ती है ताकि एक इम्पेक्ट यूज़र के ऊपर पड़े। तो ये सब चीज़ें ब्रांडिंग के अंदर तो फ़िलहाल और भी बड़ी चीज़ें आती हैं, लेकिन फ़िलहाल ये बहुत मेन चीज़ें हैं। लोगो आपका होना चाहिए, और जो कि मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स आपके लाजमी होने चाहिए, प्रमोशनल लिंक्स होने चाहिए, कॉपीराइट टेक्स्ट होना चाहिए। ये चीज़ें भी आपने ब्रांड के अंदर इंक्लूड करनी है। ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ओके।
और तीसरी चीज़ जो कि आखिरी चीज़ है जो मैं आपको बताता चलूँ, सम टाइम, एक मिनट, ठीक है, आपने अपनी साइट पर देखना है कि आपकी साइट पर किस आर्टिकल के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा आती है। जिस आर्टिकल के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा आती हो, आपने उस आर्टिकल के अंदर अंदर छोड़े, मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताता हूँ जो कि उससे भी बेहतरीन होगा, जो कि आपने पहले देखा है। ओके, जैसे कि पूरा एक आर्टिकल है, आप आर्टिकल के अंदर किसी साइन अप फॉर्म्स को ना लगाएं, वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालेगा यूज़र के ऊपर। आप आर्टिकल के नीचे, ये बिलो द आर्टिकल जो है, जहाँ पे आपको ये सोशल आइकन्स दिख रहे हैं, यहाँ पर भी आप अपना सब्सक्रिप्शन फॉर्म लगा सकते हैं। उससे ये होगा, जब आर्टिकल पढ़ के यूज़र हटेगा तो अगर उसको आर्टिकल अच्छा लगा तो वो डेफिनेटली उसको सब्सक्राइब करेगा। और यहाँ पर कन्वर्जन रेट ज़्यादा होता है, मतलब कि सब्सक्रिप्शन की रेशो बहुत ज़्यादा होगी ऊपर के निस्बत, ऊपर भी ज़्यादा होगी क्योंकि ये तो हर पेज पे व्यू हो रहा है, लेकिन नीचे भी अगर होगी तो उसको दोबारा ऊपर स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, वो नीचे से ही उसको सब्सक्राइब कर लेगा। तो जो आपका चौथा पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन बॉक्स पोजीशनिंग। पोजीशंस में मैं आपको दो जगह बहुत रिकमेंड करूँगा। एक आपका ये जो मैंने अपनी तरफ से लगाया हुआ है और इसका मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस है इस लोकेशन के ऊपर, तो मैं इसको हटा नहीं सकता। और दूसरी बात ये है कि जब तक कोई नई मार्केटिंग स्टैटिस्टिक्स नहीं आएगी तो मैं इसको यहाँ से नहीं हटाऊंगा, लेकिन जिस दिन अगर कोई नई मार्केटिंग स्टैटिस्टिक्स इन हो गई तो मैं इसको डेफिनेटली यहाँ से रिमूव करूँगा। और दूसरी पोजीशन, पहली तो आपको ये नज़र आ रही है जो मैंने लगाया हुआ है, दूसरी पोजीशंस आपके बिल्कुल एक सर्च बॉक्स के नीचे या सर्च बॉक्स से ऊपर होनी चाहिए, इस जगह पर। ऑलमोस्ट ब्लॉगर्स यहीं पर लगाते हैं। और तीसरी पोजीशन जो सबसे बेहतरीन है वो मैंने आपको बता दी है, बिलो द पोस्ट होनी चाहिए, बिलो द पोस्ट होनी चाहिए। और चौथी पोजीशन जो कि यूज़र्स करते हैं वो है पॉपअप की सूरत में, वो है पॉपअप की सूरत में। लेट्स सपोज आपने ये आर्टिकल खोला, ये कोई वेब पेज खोला, तो आपका पॉपअप ऊपर आ जाता है, तो उस पॉपअप पे कोई सब्सक्रिप्शन फॉर्म होता है, आप उसको फिल करें और फिर उसको गो अहेड करें, तो वो पॉपअप भी अच्छी बात है, लेकिन वो बाउंस रेट बढ़ा देता है। बाउंस रेट का मतलब ये है कि यूज़र जल्दी से एग्जिट कर देता है और यूज़र पे अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो मेरी साइट पर मैं पहले पॉपअप यूज़ करता था, लेकिन मार्केटिंग के ट्रेंड्स के साथ मैंने भी उसको रिमूव कर दिया है, तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करता, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं। उसकी भी मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ होती हैं कि आप जब साइट लोड हो जाए उसके 5 या 10 मिनट बाद उसको वहाँ शो करें। और उसके बाद मैं पर्सनली मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ, वर्डप्रेस पॉपअप प्लगइन है, जब आप करेंगे तो इस वक्त सबसे बेहतरीन जो वर्डप्रेस का पॉपअप प्लगइन है, नहीं वो ये नहीं है, वर्डप्रेस पॉपअप प्लगइन, लेट मी सी फर्स्ट, क्योंकि जो प्लगइन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो बहुत बेहतरीन है और ऑलमोस्ट लोग उसको यूज़ करते हैं। मैंने भी उसको रिसेंटली यूज़ किया है, लेकिन शायद ये है। ओके, वो कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको एक और चीज़ रिकमेंड कर दूँ, आप ऑप्टिन मॉन्स्टर भी यूज़ कर सकते हैं। ऑप्टिन मॉन्स्टर ये भी बहुत एक बेहतरीन है, बेस्ट लीडिंग जनरेशन सॉफ्टवेयर फॉर मार्केटिंग। ये भी, इसका सिर्फ और सिर्फ काम ये है कि ये लाइट बॉक्स पॉपअप्स होते हैं इसके अंदर, और इसमें आप फॉरम्स लगाएं, कोई प्रमोशंस लिंक्स लगाएं, ऑलमोस्ट यूज़र्स यही यूज़ करते हैं, लेकिन ये प्रीमियम है। आप इसके अलावा ब्लूम यूज़ कर सकते हैं, एलिगेंट थीम के, ब्लूम सॉरी एलिगेंट थीम्स, ब्लूम एलिगेंट थीम का ये बहुत बेहतरीन प्लगइन है। ये सिर्फ और सिर्फ ईमेल मार्केटिंग के लिए है, इसमें आप कोई दूसरा कोई प्रमोशनल लिंक्स नहीं लगा सकते, लेकिन ये बहुत बेहतरीन है। मैं पर्सनली इसको यूज़ करता रहा हूँ और इसका रिज़ल्ट बहुत इफेक्टिव है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ब्लूम एलिगेंट थीम्स का ये प्रोडक्ट है उनकी, ब्लूम के नाम से, और ये बहुत बेहतरीन है। इसमें आप डिफरेंट पोजीशंस आपको मिल जाएंगी। आपका जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपका साइड, ये जो साइड होती है यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये पॉपअप हो जाएगा, अप हो जाएगा, वो भी एक बेहतरीन पोजीशन है। उसके अलावा आप इसको कहीं पर भी स्टिक कर सकते हैं।
ये पॉपअप्स प्लगइन्स में सबसे बेहतरीन है ब्लूम एलिगेंट थीम का, और इसका लिंक भी आपको बिल्कुल इस वीडियो के नीचे बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इसकी साइट को विज़िट कर सकते हैं और उसको वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रीमियम है लेकिन ये वन टाइम फ़ी के साथ है, इसमें आपको कोई रिक्यूरिंग पेमेंट नहीं पे करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल बहुत पसंद आया होगा। और ईमेल मार्केटिंग बहुत बेहतरीन तरीका है अपने यूज़र को अपने साथ कनेक्ट रखने का। अगर आपका एक यूज़र आज आया है और आप चाहते हैं वो आपकी साइट पर नेक्स्ट टाइम भी आए, तो ज़ाहिरी बात है फिर आपको कोई ऐसा कंटेंट उसको सेंड करना पड़ेगा या बताना पड़ेगा जो कि जिसमें उसका इंटरेस्ट भी इंक्लूड हो। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो है वो आपकी ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटजी ही है, जो आपके रिटर्निंग विजिटर की रेशियो बढ़ा देती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके अलावा आप मेरी साइट knowledgeid.com पर आकर इस फॉर्म को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी हमारी कोई न्यू एक्टिविटी इन द शेप ऑफ कंटेंट और इन द शेप ऑफ मल्टीमीडिया वीडियो एंड ट्यूटोरियल, so then we will publish, then we will must send you the emails, then you can check it out what we have the new content over on our website. So the next thing is that if you have any question related to any detailed query, so मैं पहले भी कई यूज़र्स को बता चुका हूँ कि अगर कोई डिटेल क्वेश्चन हो आपके पास तो आप मेरे फॉरम पर आएँ, forum.knowledgeid.com। फॉरम पर आकर साइन अप हो जाएं। साइन अप होके आपको होम पेज के ऊपर जो फॉरम का जो होम पेज है उसके ऊपर आपको न्यू टॉपिक का ये ऑप्शन दिखेगा। आप न्यू टॉपिक पे क्लिक करके यहाँ पर अपना टॉपिक क्रिएट करके उसको किसी अगर एसईओ से रिलेटेड एसईओ में डाल दें, वर्डप्रेस से रिलेटेड है वर्डप्रेस कोई सी भी कैटेगरी में ड्रॉप कर दें अपना, यहाँ पे इशू यहाँ पर राइट करते हैं जो भी आपको इशू आ रहा है, और उसके अलावा जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। अगर कोई इशू है तो आप उसका मस्ट एक स्क्रीनशॉट लेकर उसको यहाँ पर अटैच करें। तो यहाँ पर ये अपलोड की ऑप्शन भी है। स्क्रीनशॉट अटैच करने के बाद यहाँ पर आप उसको क्रिएट टॉपिक कर दें, तो हम विद इन एज सुन एज पॉसिबल विद इन फ्यू आवर्स आपको, या विद इन फ्यू मिनट्स आपको यहाँ पर रिप्लाई कर देंगे और आपका इशू यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगा। बजाय इसके आप मुझे कॉल्स करें, मुझे फ़ोन करें, मैसेजेस करें, तो आप मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हर वक्त अवेलेबल होता हूँ विद इन वर्किंग आवर्स। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।